नहीं ले पा रहे अपने ही स्टूडेंट्स का, मतलब जो आईआईटी और आईएम्स जो बोल रहे हो दे आर क्लोजली निट, और जो उनका जो डेटाबेस मेंटेन होना चाहिए इंस्टीट्यूट लेवल पे और जो गेट बैक आना चाहिए वो नहीं है somehow something। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको ओन करनी चाहिए, ईच एंड एवरी फैकल्टी मेंबर, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वो माहौल ही नहीं बन पा रहा, आई डोंट नो, इंचार्जेस बनते हैं लेकिन फिर भी वो चीज कंप्लीट नहीं, लूप कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो किसी हद तक जाता है बट कुछ तो मिसिंग है। नहीं, no problem, ma'am. I think it's a good start. At least we are aware that, and we are aware and we have ambition to achieve something. I think that's a wonderful start. And honestly, ma'am, I was about to discuss with Alok, and I will probably connect with you after this session. I want to recruit in my current organization, in my current startup. So I will connect with you. And I was also part of the alumni committee in NITI. So I would be extremely happy if I can play any role, connect with BIT to, provide that platform and help students connect with alumni. And maybe there are so many alumni, like you mentioned, they are not connecting back with the institute. So I would be very happy to play any kind of role to make this a platform or make this endeavor a success. So let's connect sometime. Actually, Subhrata ma'am is the in charge. Yeah, Subhrata is the in charge of alumni committee. और जो हमने भी प्लेटफॉर्म लिया एल्मनाई को कनेक्ट करने के लिए, इट्स द सेम दैट यूनाइटेड नागपुर इज यूजिंग, सो वी थॉट दैट मे बी आवर प्लेटफॉर्म और द वे टू कनेक्ट इज नॉट ओके, सो द प्लेटफॉर्म दैट वी आर यूजिंग is absolutely okay. So that is how many NITs we have seen, and we have seen United Nagpur very close to it. So but still I think all the alumni are not registered in our alumni portal. That's an issue. Correct. And there should be one portal that should connect all the alumni, and that's not happening actually. Correct, ma'am. And then there are many other if all the alumni gets connected on that portal. Yeah. And then there are a few other elements also, ma'am, that a constant update, etc., that alumni seek forward to. But somehow, yes, BIT is doing a lot. I keep visiting BIT internet and web page, and I see there are a lot of updates. But as an, I think that alumni have to come back here. They are not naturally getting that. So a lot of work can be done. In fact, I remember that BIT alumni page is being maintained by Verb, which is the startup of my junior from NITI. So he's doing fabulous, and there are many work. Yes. Paresh is my immediate junior from NITI Mumbai, who is the founder of Verb, which is a startup, and I think BIT is using their platform for connecting the guys. So I'll connect with you and Subhrata ma'am separately, and we should definitely discuss about it. I would be more than happy to play any role for the benefit of the students. Yeah, sure. Okay, go ahead, ma'am, with the program. I think it's Okay, ma'am. Sure. Pratyush, now we can start. Yes, ma'am. Hello, I'm audible. Yeah. Good afternoon, respected dignitaries, faculty members, and dear students. I am Pratyush Mahapatra, a proud member of Startup Club, and with great joy and immense jubilance, I extend my warm welcome to all here present for this panel discussion session organized by Startup Club. Now, I would like to invite Muskan Himnani, our co-anchor, to continue the session ahead for today's event. And yes, she is the winner of the quiz competition recently organized by Startup Club. Muskan, please continue. Thank you, Pratyush. Bhilai Institute of Technology, established in 1986, has always provided its students with conducive and supportive academic ambience, blended with strong research and development culture adopted by its faculty members to support various graduate and undergraduate programs. With this, I welcome our Chief Patron, Shri Vijay Kumar Gupta Sir, Chairman, BIT Trust, Shri IP Mishra Sir, Secretary, BIT Trust, our patrons, Dr. Arun Arora Sir, Director, BIT Durg, Dr. Mohan Gupta Sir, Principal, BIT Durg,
Dr. Manisha Sharma ma'am, Vice Principal BIT Durg, our conveners for Startup Club, Dr. Shubhrata Nagpal ma'am, our advisor, Dr. Satyavardhan Tiwari sir, our program coordinator, Professor Alok Kumar sir, Startup Club coordinator, Professor Raj Kumar Singh sir, and our Startup Club faculty members, Professor Shubham Dashore sir, Professor Pushpendra Singh sir, Professor Vinita Gupta ma'am. Startup Club aims to create the next generation of industry leaders and entrepreneurs by providing them with necessary guidance and a platform full of opportunities to make their startup dreams come true. Now, I would request Shubhrata ma'am to address this session. Please, ma'am. Thank you, Muskan. A very beautiful evening to all of you. Respected Dr. Manisha Sharma ma'am, Shri Dileshwar Deshmukh sir, today's panelist, and our proud alumni. Shri Alok sir, today's session coordinator, Startup Club team members, faculty members, and my dear participants. आज बहुत से सेशंस के बाद हम अपने लास्ट इवेंट में पहुंचे हैं जो हमारे इस सेशन का I mean 2020-21 का last session है, and we hope that our participants have got many things from our sessions, and we will continue with our programs and events and new learnings from July onwards. As ma'am said, Manisha ma'am said, and Dileshwar sir said, that we as teachers can only open the door. We as teachers can only open the door, but you must enter in yourself. And we are trying to open more and more doors for our budding entrepreneurs. I would like to share a small story with all of you. Once there was a farmer, एक फार्मर था एंड एक बेकर था, और जो फार्मर था वो डेली 1 किलो बटर बेकर को देता था। तो बेकर ने डिसाइड किया कि मैं चेक करता हूँ कि ये कहीं मुझे कम बटर तो नहीं देता। तो वो सोचता है कि मैं वेट करूँगा कि ये कितना बटर मुझे डेली देता है, और यदि इसने मुझे गलत बटर दिया होगा, गलत मेजरमेंट का बटर दिया होगा, तो मैं इसको कोर्ट तक घसीटूंगा, क्योंकि मैं सालों से इससे बटर ले रहा हूँ। तो एक दिन वो ऐसे ही उसके बटर को वे करता है, तो वो देखता है कि वो 1 kg से कम है, और फिर वो उसे कोर्ट में खींच के ले जाता है। तो कोर्ट में जज उस किसान को बोलते हैं कि तुम इसको कम बटर क्यों देते हो? तो किसान बोलता है, योर ऑनर, मैं तो बहुत ही पुराने टाइप का इंसान हूँ, मुझे तो प्रॉपर मेजरमेंट करना नहीं आता, बट मेरे पास एक स्केल है। तो जज पूछते हैं, तो तुम किस तरह से उस स्केल में वेट करते हो? तो वो किसान बताता है कि 1 साल से पहले ये मेरे पास आए थे मेरे से बटर लेने के लिए, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोज इनसे 1 किलो ब्रेड लूँगा, क्योंकि इनका बेकिंग शॉप है। तो मैंने इनसे 1 किलो ब्रेड लेता हूँ और उसी ब्रेड को स्केल पे रखता हूँ और उतना ही बटर इनको दे देता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन बेईमान है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसी राह पर, इसी मेहनत के साथ और इसी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। आप किसी से भी चीटिंग नहीं करिए, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए और सफलता आपके कदम चूमेगी। I, Dr. Shubhrata Nagpal, convener of this club, is very thankful to management for supporting us at every step of Startup Club. I want to give a special thanks to Dr. Manisha ma'am for guiding us at each and every moment of the program.
On behalf of VIT Durg, I again thank Mr. Pileshwar Deshmukh sir for accepting our invitation and to be the part of a startup club once again. And I hope that this session is going to be very helpful for all the participants. Thank you and welcome you again. Over to Muskan. Thank you so much, ma'am. It was really nice. So now I would like to invite Dr. Manisha Sharma, ma'am, Vice Principal and Training and Placement Officer of VIT Durg, Professor of Department of Electronics and Telecommunication. Madam has received National AICTE Leelavati Award 2020. She has published various research papers in reputed international journals. Till date, 6 scholars have done their PhD under ma'am. It's our pleasure to have you, ma'am. Thank you. Thank you, Muskan, for such a wonderful introduction. इंट्रोडक्शन पे मुझे याद आया, शुभ्रता ने स्टोरी का माहौल बनाया, तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए मैंने एक स्पीच सुनी थी अभी रिसेंटली. उसमें उन्होंने जब जैसे होस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा था तो उसने ये बोला कि जितना बड़ा इंट्रोडक्शन उतना छोटा पर्सन. मतलब गांधी जी के लिए जब साउथ अफ्रीका से एक लेटर आया था तो उस पोस्ट कार्ड पे सिर्फ गांधी लिखा हुआ था, गांधी इंडिया, दैट्स इट. एंड वो जो लेटर है वो उनके पास में पहुंच गया. तो उन्होंने ये बोला कि जितना बड़ा इंट्रोडक्शन उतना छोटा पर्सन, जितना शॉर्ट कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े, जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट इंट्रोडक्शन. ओके, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, डॉक्टर शुभ्रता ma'am, convener of the startup club, Mr. Deleshwar, an entrepreneur, mentor of super mentor for the startup club, I should say. ऐसे ही बहुत सारे entrepreneurs startup club में associated हो जाएं, then it would be so nice. Mr. Alok Kumar, the coordinator of the program, Mr. S.V. Tiwari, advisor of the startup club, and all the in charges, faculty in charges of the startup club and students as well. अभी तक बहुत सारे सेशंस हो रहे थे, एक्सपर्ट्स आ रहे थे एंड दे वर ऑल सेइंग ये करो, ऐसे बिजनेस प्लान बनाओ, ऐसे मार्केट रिसर्च करो, ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करो. और कुछ कॉम्पिटिशन्स भी हुए. इस ईयर हमने 2 क्लब स्टार्ट किए बेसिकली VIT में. एक इनोवेशन क्लब स्टार्ट किया और फिर लगा कि सिर्फ इनोवेशन क्लब से नहीं हो पाएगा, तो एक और क्लब स्टार्ट किया रिसेंटली 2 मंथ्स पहले, दैट इज स्टार्टअप क्लब. ऐसा लगा कि बच्चे पहले इनोवेशन क्लब में कुछ होमवर्क कर लें और फिर कुछ एक टीम जब उनकी बन जाए और उनको लगे कि यस दिस इज आवर फ्लेयर, स्टार्टअप मेरा फ्लेयर है, तो फिर स्टार्टअप क्लब ज्वाइन कर लें. बेसिकली ऐसा लग रहा है हमें या हम सबको, इवन मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये कल्चर जो है नया है अपने इंस्टीट्यूट में, बट इस कल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ना बहुत क्रिएटिव भी हैं. मतलब एक वर्टिकल, जैसे मैं बार बार कहती हूँ आई हूँ कि हमारे यहाँ गेट का बहुत माहौल है. VIT में बच्चा आई थिंक फर्स्ट ईयर से या 3rd सेमेस्टर से ही गेट में लग जाता है, इतना जबरदस्त माहौल है इसका. प्लेसमेंट का माहौल अभी भी नहीं है, बच्चे हायर स्टडीज करना ज्यादा चाहते हैं, तो वो भी हमको एक ऑप्शन बनाना है. बट कुछ बच्चे हमारे बहुत क्रिएटिव हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं. सो ये जो स्टार्टअप का जो माहौल है वो आई थिंक ये एक चीज है जो हमको बाकी इंस्टीट्यूट से अलग कर सकती है, हमारी एक अलग पहचान बना सकती है. आई थिंक वो पहचान जो मैं थोड़ा रिसेंबल करती हूँ बिट्स पिलानी के साथ. आई थिंक बिट्स पिलानी ने इंडिया में नहीं वर्ल्ड में अपनी एंटरप्रेन्योर्स, नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दे हैव गिवन टू द वर्ल्ड इज मोर देन एनी IIT, and that is where BITS Pilani is different from other institutes. And BIT और BITS क्यों काफी आसपास जैसे नहीं लग रहे हैं, so why don't we also follow those steps? To be very frank, कई बार लोग BIT को BITS से भी confuse कर जाते हैं, and I am very happy about it. Let it be another BITS.
सो ओके फाइन, लेट्स सी अगर हम ये कल्चर अच्छा आसानी से नहीं बनेगा, ये तो बहुत स्टार्टिंग है, इसको 10 साल लगेंगे शायद, लेकिन डेफिनेटली मैं हमेशा कह रही हूँ कि ये स्टार्टअप क्लब का कुछ आउटपुट चाहिए। 1 साल के बाद अगर हमने एक भी एंटरप्रेन्योर बाहर निकाल दिया तो ये स्टार्टअप क्लब का गोल अचीव हो गया। And let this number multiply every year. It may be a very small, मतलब suppose इस साल सुब्रता मैम अगर नहीं भी कोई एंटरप्रेन्योर बना तो एटलीस्ट एक टीम बन गई, कोई एक प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो वो भी एक स्टार्टिंग हो गई। तो ये सब बाकी क्लब से अलग है कि इवेंट्स कराए और भूल गए। This club should give some output to the society, not to the institute but to the society. And as we have always said कि we are not focusing on technical entrepreneurs, कुछ भी टाइप का entrepreneurship हो, anything what you can think of. Engineers मेरे ख्याल से ऐसे ही जो सब काम कर लेते हैं, उनकी इडली की चेन भी हो सकती है, वो लोग बॉलीवुड में भी जा सकते हैं, है ना। हमारे मेरे ख्याल से कितने स्टूडेंट्स हैं जो बॉलीवुड में भी हैं, राइट। सो कुछ भी कर सकते हो, टेक्निकल तो कर ही सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट टू हैपन, लेट्स होप कि हमारा ड्रीम कम ट्रू, कि हम भी फैसिलिटेट कर पाए अपने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर बीटेक टाइम, ड्यूरिंग देयर एमबीए टाइम, टू थिंक अबाउट द स्टार्टअप, टू थिंक अबाउट गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स, टू थिंक अबाउट गिविंग जॉब टू अदर स्टूडेंट्स। तो हो सके तो हम हमारे थ्रू बच्चे अपना सपना पूरा कर पाए, और उनको सपना पूरा करते हुए देख के हम लोग तो गदगद हो ही जाएंगे। पेरेंट्स और टीचर्स तो मेरे ख्याल से सक्सेस अपने स्टूडेंट्स में ही देखते हैं। सो वी होप यस कुछ बच्चों को हम देखें और बोलें कि ये सीईओ है इस कंपनी का, मजा आ जाएगा मुझे, जैसे दिलेश्वर है किसी कंपनी का सीईओ, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, ma'am. Now, I would like to call Pratyush to tell us more about our speaker and this event. Pratyush, over to you. Thank you, Muskan. Before introducing sir, I would like to summarize the events we had done earlier under the valuable guidance of Manisha Sharma ma'am and Subrata Nagpal ma'am and all the other faculties and the student team as well. So these are session on marketing research, which was conducted by Dileshwar Deshmukh sir earlier, and session on industry policy government of Chhattisgarh, which was conducted by P.K. Nimonkar sir. Session on women entrepreneurship, which was conducted by Rumi Malhotra ma'am, and many more sessions. And about the speaker, we are here to have a wonderful session on panel discussion on entrepreneurship. Today, we have with us Mr. Dileshwar Deshmukh sir, co-founder and chief operating officer at V2 Technologies, and he is alumnus of our college, Chhattisgarh. Thank you so much, sir, for joining us today. Well, I would like to begin with a brief introduction of sir. Sir is a strategic, performance-driven, result-oriented operation leader. He is known for creatively leading end-to-end business verticals. He has a deep expertise in startups, robotic process automation, Six Sigma, Lean, theory of constraints, Kanban, Kaizen, and 5S principles. Sir was head of the business planning operations at Aditya Birla Group. Sir worked at Aditya Birla Fashion Retail Limited as a senior program manager in retail and trade business vertical for international brand from 2008 to 2015, and also as head of the business planning, marketing, fashion operations in e-commerce business vertical at Aditya Birla Online Fashion from 2015 to 2018. Sir was business head at BizOnGo, Smart Paddle Tech Private Limited, India's first B2B startup from 2018 to 2020. Sir was head of sales and business operations at AIBONO, Smart Farming Private Limited, and agritech startup for a tenure of 2020 to 2021. Airborne is considered in top 10 agritech companies in India by many sites. And currently, Sir is in V2 Technologies, a Singapore-based B2B e-commerce startup. Sir has received meritorious at University at Virginia Darden School of Business and Project Management Certification Program and Managing the Company of the Future Course distinction from London Business School. Sir has represented Aditya Birla Group twice at Economic Times Young Leader Award and also was awarded as the most promising newcomer at Aditya Birla Group Time and Action Business Division. He collected 5 gold and 2 silver certificates in various training programs at Aditya Birla Group and also awarded for presenting case on MFL's supply chain by CII and Asia Supply Chain. We welcome you, sir.
and would request Muskan to begin the discussion with sir. Thank you so much. Thank I would have loved to have a very small introduction, but thank you so much for the gracious words. Really happy to be part of this wonderful forum. Looking forward to add some value to the students. Dileshwar, Yes. Yes. Hearing your introduction was really awesome. बहुत vast experience and it's so impressive. Really impressive. Very, very impressive. Thank you so very much, ma'am. एक्चुअली में इस पैनल डिस्कशन में हम बच्चों को सुनेंगे, isn't it? मतलब ये हमने ऐसा सोचा ना मैम कि ये बच्चे दिस टाइम लेट तो ये एंड दिलेश्वर सर आप उसमें वो करेंगे, मेंटरिंग करेंगे, कैसा है ये? कैन यू ब्रीफ अबाउट द प्रोग्राम? ओके, यस मैम, ऐसा ही रहेगा। मुस्कान, के क्वेरीज हैं Okay. तो हमने पहले भी गूगल फॉर्म में ले ली हैं इन एडवांस, और चैट अच्छा। बॉक्स में भी बच्चे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हाँ, जो हाँ। उन्होंने पहले से ही गूगल फॉर्म में पोस्ट कर दिए थे उन क्वेश्चंस को पहले ले लेंगे और हाँ, फिर हाँ। उसके बाद ओपन कर देंगे मैम। शुभ्रता मैम ऐसा करें, लेट स्टूडेंट स्पीक देमसेल्व्स, तो वो थोड़ा दिल से मतलब एक्चुअली ये अभी तक बच्चे बस सुनते हुए आते हैं। एक आध प्लेटफॉर्म ऐसा भी हो कि बच्चे बोले खुल के अपने मन की बात, राइट? मन की बात आजकल चला हुआ है। हाँ, तो हाँ, yes ma'am, we want to make it more interactive. So yes, if anyone have questions regarding the discussion, you can directly ask to sir by turning on your microphones, or you can also put your queries in the chat box too. We will answer. शुभ्रता मैम कैन वी डू दिस कि बच्चे खुद ही पूछ लें हमको मैडम? Yes ma'am, to make it more interactive. प्रत्युष, Yeah, जो yeah. आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लीजिए। Yes ma'am. बाकी फिर ओपन जिसको भी Yes, ma'am. question है वो अनम्यूट करके they can ask their own questions. Yes. Yes ma'am. Ma'am, at the end of the event we will do that. Okay. Muskan, can you do that? Wow. Okay, so we have some questions related to entrepreneurship and marketing. On behalf of Startup Club, I would like to ask those questions. Sure, Muskan. So before we start, I just wanted to, applaud the initiative and the overall concept what Manisha ma'am and rest of the faculty members, Subrata Nagpal ma'am, Alok has come up with. And then I think is a very good idea. There was a lot of session that was conducted by the experts on a bits and pieces. Students were able to gather a lot of information. And in this very session, let's have a very frank and open discussion. I'm sure students would have learned a lot from those various sessions, but there might be some little bit of element of doubt, how to start, what to do. They're trying to, jot down they're trying to connect those dots. So let's utilize this opportunity to connect those dots once again. And so that a clear-cut picture is there and you are very much clear that how you have to execute anything you would want to. I remember in my last session, although it was about 2-hour session, there was questions flowing. And unfortunately, because of the paucity of the time, I could not answer. But I'm happy to, once again interact with all of you guys. I try to answer all of your questions with utmost honesty and best of my ability. I hope that it will be a fruitful session, which will probably help you to get action, drive action from the knowledge you have gathered so far. So let's get started, Muskan. Okay, so the first question I want to ask is, how significant is market research, and can it always tell whether an idea will succeed or not? Okay, very fundamental and very, very good question. If I were to talk about the success of any startup, it is an outcome of many things. There are a lot of input that goes behind for the success of any startup. And then if I were to name a couple of them, like there has to be a very, very good idea, feasible idea. And then उसके बाद में एक बहुत बढ़िया business plan होना चाहिए, which is actually validating through various assumptions कि हाँ ये जो idea है, this can work out and it will eventually be successful. After you have done this B plan वगैरह आपने बना दिया है, उसके बाद आप marketing research करते हो and you actually prepare a go-to-market strategy. कि आपके पास में एक आइडिया अच्छा खासा है, आपने उसको प्लानिंग की है, उसके ऊपर में नंबर्स वगैरह लगा के वैलिडेट कर लिया है कि हाँ दिस मेक्स अ रीजनेबल गोल
एंड देन यू प्रिपेयर अ GTM प्लान, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, कि आप मार्केट में कैसे एंटर करेंगे. एंड आफ्टर अ सक्सेसफुल GTM आपको कुछ अल्फा बीटा पायलट करने होते हैं, एंड देन यू गो फुल फ्लेजेड लॉन्च. एंड दैट इज हाउ अ जर्नी ऑफ स्टार्टअप हैपेंस. एक बार लॉन्च अगर सक्सेसफुल हो गया, देन यू आर इन अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ वेरी गुड वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन. बट ऑल ऑफ दिस, अ गुड क्वेश्चन इज आस्क्ड कि GTM का रोल कितना इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू वांट टू आस्क मी, आई विल से कि सारे ही इंपॉर्टेंट है इन डिफरेंट फेजेस. बट यस, GTM is a foundation, because what happens is, if you were to look at the way I said, कि आपका कितना भी अच्छा आइडिया हो, बट उस आइडिया को अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो, आप सिर्फ अपने दिमाग में रखते हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. सॉरी टू बी हार्श, बट दैट्स अ रियलिटी. आइडिया की वैल्यू एंड वर्थ तभी आती है जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हो. बट आप जब इंप्लीमेंट करोगे, उससे पहले आपको टेस्ट करना होगा कि इज इट अ वायबल आइडिया. मतलब आइडिया आप कोई भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. किसी आइडिया का छोटा रिजल्ट होगा, किसी आइडिया का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रिजल्ट होगा. एंड इट विल डिपेंड अपॉन योर एक्सपेक्टेशन कि आप किस लेवल तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने आइडिया को लेकर के जाना चाहते हो. आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इफ यू वांट टू मेक इट अ प्रॉफिटेबल वेंचर, अ सक्सेसफुल वेंचर विच कैन लास्ट, जो सस्टेनेबल हो और ऑटोमेटेड मोमेंटम पे आ जाए, जो एक अच्छे स्पीड में आ जाए और अपने आप चलने लगे. फॉर दैट I would say that GTM, a good marketing research and go-to-market strategy forms like a base. और इसकी शुरुआत हमेशा दो चीजों से होती है. पहला तो है the crux, the whole foundation or anything. See, any business is all about two things. Number one is a demand and supply. And आपको GTM और marketing research आपको बताता है कि आपका demand कितना strong है और कितना अच्छा है. अगर आपने demand को अच्छे से समझ लिया, एंड उसके बाद में किसी अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस से आप उसको सप्लाई से कनेक्ट कर पा रहे हो, यू आर डन, यू आर होम. इट इज एज सिंपल एज दैट. ऑल्दो लुक्स वेरी सिंपल, डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, बट अगर इस पूरे मतलब कि अल्फा बीटा गामा सिक्स सिग्मा, अगर ये कॉम्प्लेक्स चीजों को हटा करके बहुत ही सिंप्लीफाई करना चाहूं, तो आप सिंपल से आप समझिए कि डिमांड किस चीज की है मार्केट में, एंड आप उस डिमांड को आप फुलफिल कैसे कर सकते हैं विथ अ सस्टेन्ड सप्लाई. अगर ये दो चीजें आपने कर ली, तो आपका आइडिया, आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि आपका मार्केटिंग रिसर्च और आइडिया, इसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी आप इंक्रीज कैसे करते हो, है ना. तो आई विल ब्रॉडली कवर, मैंने डिटेल में कवर किया था इन माय लास्ट सेशन, बट आई विल ब्रॉडली कवर एंड आई विल पिन पॉइंट ऑन कपल ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट विल बी हेल्पफुल. इज दैट एनी आइडिया will be successful only when tested through a good marketing research principles. कि आप एक अच्छा मार्केटिंग रिसर्च कीजिए, और अच्छा मार्केटिंग रिसर्च के लिए जरूरी नहीं आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आप सस्ते में भी कर सकते हो. मैंने अपने सेशन में कवर किया था कि व्हाट आर वेरियस मेथड्स, वेरियस ways and means you can conduct a marketing research, and you will get a sufficient amount of data that will suggest कि हाँ भाई आपके आइडिया में कितना दम है, और उस आइडिया को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप कितना बढ़िया मार्केट और कितना बढ़िया बिजनेस बना सकते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, लाइक मैंने बताया कि आपके स्टार्टअप के सक्सेस के लिए, या फिर एक सिग्निफिकेंट, एक अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए, देयर आर 3 to 4 बिग स्टेप्स. पहला एक अच्छा बी प्लान बनाना है आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई आप कैसे, आपका आइडिया कैसे काम करेगा, और उसके ब्रॉड टेनेंट्स होने कि हाँ फाइनेंशियली ये कैसे काम करेगा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कैसे सॉर्ट आउट होंगी, एंड उसके बाद में इस आइडिया को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेकंड थिंग इज द GTM स्ट्रेटेजी, जिसके बारे में हम थोड़ा भी डिटेल में बात करेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च आप कैसे करोगे, एंड वो मार्केटिंग रिसर्च विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर बी प्लान एंड योर एग्जीक्यूशन. सो आई वुड अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई कीप द ब्रॉड प्रिंसिपल्स, बट मैंने लास्ट सेशन में अपना स्लाइड शेयर किया था जहां पे पूरे डिटेल्स दिए हुए कि मार्केटिंग रिसर्च कैसे करते हैं. टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ शॉर्ट इज, मार्केटिंग रिसर्च इज द फंडामेंटल फाउंडेशन विच विल गिव यू एन आइडिया कि मार्केट कितना रेडी है आपके आइडिया के लिए. एंड अगर मार्केट आपका रेडी है, देयर इज अ डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट, और आपका आइडिया दो ही चीजों में होगा, या तो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा. अगर मार्केट रेडी है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अडॉप्ट करने के लिए, you have a very fair chance or good chance that
your idea or startup will take off. इस चीज के लिए एक मार्केटिंग रिसर्च करनी चाहिए. मार्केटिंग रिसर्च से आपका वैलिडेट होता है आइडिया, आपके जो दिमाग में है इसको हजारों लोग हैं, हजारों दिमाग है, वो वैलिडेट करते हैं कि हाँ भाई इसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये लेकर के आओगे तो हम इसको यूज करेंगे एंड वी विल पे फॉर इट, एंड दैट्स हाउ बिजनेस विल स्टार्ट. एंड अ गुड पायलट अगर आपने इसके अराउंड कर लिया, इवन अ गुड मार्केट रिसर्च भी कर लिया, तो उसके बाद में फिर यू आर रेडी फॉर अ गुड ट्रेजेक्टरी. उसके बाद में फिर फंडिंग एक्सेट्रा ऑल ऑफ दिस जो मेजर रोड ब्लॉक होते हैं उसको सॉल्व करना रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है. तो आई वुड to summarize, I would say a marketing research is a foundation of any business or any startup or any idea. And आपका जो आइडिया है उसको जरूर से वैलिडेट करें by conducting a marketing research कि वो कितना feasible है, and लोग उसको वैलिडेट करते हैं कि नहीं कि भाई हाँ चलो आपका आइडिया है, we are with it, हम इसके साथ में हैं. And more cues and more data points you are able to gather that will help you to get moving. Muskan, I hope that I was able to cover not too deep, but at least a good picture about this. Yes, sir, you did. So I would like to proceed with my next question. And the next question is how to work with product launch strategy, evolving a sound go-to-market strategy, GTM. Okay, very good question. Now see, product launch and जो GTM strategy है वो like अभी हमने इससे पहली सेशन में बात की कि इज अ फाउंडेशन, इज अ फंडामेंटल ऑफ एवरीथिंग. तो आपको कैसे करनी चाहिए? सो जीटीएम मैंने अपना जो मार्केटिंग रिसर्च का सेशन लिया था, मैंने उसमें बताया था इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका जो एंड कस्टमर है, एंड कंज्यूमर है, जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने वाला है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. उसके दिमाग में क्या चल रहा है मतलब उसको व्हाट इज द डिमांड, उसकी रियल डिमांड क्या है, व्हाट इज दैट दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर, एंड उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए व्हाट इज द मींस करेंटली अवेलेबल टू देम. आज के रेट में अगर उनकी कोई डिमांड है तो कहीं ना कहीं से फुलफिल हो रही होगी, और अगर नहीं हो रही तब तो और भी अच्छी बात है, तब तो यू हैव नो कंपटीशन, आप डायरेक्टली उसको फुलफिल कर सकते हो. बट इन ऑल लाइकलीहुड 95% केसेस में ऐसे होते हैं कि जो भी आइडियाज होते हैं, जो भी डिमांड होते हैं, कहीं ना कहीं से उनकी डिमांड फुलफिल हो रही है. एंड वी कैन improve or we can cover up the gap. I'm sure कि उसमें कुछ ना कुछ गैप हमेशा ही होता है, स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट हमेशा ही होता है, एंड वी आर एबल थ्रू मार्केटिंग रिसर्च वी आर एबल टू फाइंड आउट कि वो गैप क्या है. कस्टमर को अभी जो भी उसकी डिमांड को फुलफिल जिस भी तरीके से हो रही है विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, वहां पे प्रॉब्लम क्या है, एंड उस प्रॉब्लम को हम पकड़ के हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रिपेयर करते हैं जो उस गैप को फुलफिल करती है, एंड उससे कस्टमर के जो नीड होते हैं उसको हम बेटर तरीके से फुलफिल कर सकते हैं. गॉट इट? सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च है, जीटीएम है, आप इसको बनाओगे कैसे? तो द स्टेप्स आर एज फॉलोज. नंबर 1, आपका जो भी आइडिया है उस आइडिया के पीछे में आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम दैट योर कस्टमर इज फेसिंग. आप पहले तो पता लगाइए कि वो प्रॉब्लम क्या है, एंड दैट प्रॉब्लम विल गिव यू द बेसिस कि पहले आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, फिर सॉल्यूशन निकल आएगी. एंड इट इज वेरी वेल सेड दैट हाफ द सॉल्यूशन लाइज इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ. अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो बाकी सॉल्यूशन ढूंढना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, पहले तो पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट आपके दिमाग में जो भी आइडिया आता है, आपको लगता है कि यार, एंड वो आइडिया तभी आता है व्हेन यू एनकाउंटर सर्टेन प्रॉब्लम. आइडिया मतलब ऑटोमेटिक ऐसे अचानक से नहीं आ जाता है, ये तभी आता है व्हेन यू एनकाउंटर सर्टेन प्रॉब्लम, और हमको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे दिमाग में शायद इसका सॉल्यूशन है, दिस कैन वर्क आउट. सो द आइडियल वे इज whenever you come across any problem and you believe कि you have a solution for it, next thing आपको करना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए. आप बहुत ही सस्ते तरीके से, सिंपल तरीके से रिसर्च कीजिए उस प्रॉब्लम के बारे में, कस्टमर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में. जितना ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं प्लीज डू दैट. इट विल गिव यू मोर. हम जैसे आप लोग सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, एंड आई एम श्योर आप लोग जब एग्जाम देते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू राइट योर आंसर, आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ते होंगे कि इस प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है एंड कौन से डायमेंशंस ये प्रॉब्लम कवर कर रहा है. करेक्ट? एंड देन यू स्टार्ट विथ योर आंसर एंड द डेरिवेशन एक्सेट्रा. बहुत बिल्कुल सिमिलर स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी होती है. इनफैक्ट लाइक मनीषा मैम वाज सेइंग,
कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो आप लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो बस इसके बाद में डरने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, रिसर्च कीजिए थोड़ा उस प्रॉब्लम के बारे में कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली में क्यों है एंड व्हाट आर वेरियस डायमेंशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, दैट विल गिव यू अ मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड एक्चुअली आपको सॉल्यूशन भी वहां पे मिलेगा। फिर आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, आपका प्रोडक्ट लॉन्च इज वेयर एग्जीक्यूशन। इसमें एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, बट एग्जीक्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉब्लम की अच्छे से समझ में होनी चाहिए। अगर आपने प्रॉब्लम समझ लिया फिर आप एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाओगे। तो बिफोर यू स्टार्ट विथ योर डेरिवेशन एंड राइटिंग द आंसर, आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के डायमेंशंस क्या है, वहां से आप फिर आंसर प्रिपेयर करना चालू करेंगे। तो माई समरी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, whenever you come across a problem, आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है, मार्केटिंग रिसर्च करनी है, फोकस ऑन योर कस्टमर अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है एंड उस प्रॉब्लम के लिए उसके पास में करंट सॉल्यूशन क्या है। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो जो सॉल्यूशन है फुल प्रूफ नहीं होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट डेवलपिंग योर प्रोडक्ट, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जो भी गैप है उस प्रॉब्लम में और करंट एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप होगा, देयर विल बी सम इंप्रूवमेंट एरिया। आप अपने प्रोडक्ट से उस गैप को एड्रेस करने की कोशिश कीजिए एंड अकॉर्डिंगली वंस यू आर एबल टू डू दिस, आप एक छोटा सा एक आपका जो भी आइडिया होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रोटोटाइप होगा, आप उसको टेस्ट कीजिए, ट्रायल कीजिए। जो मैंने अपने स्लाइड में बताया है कि डू अल्फा लॉन्च, बीटा लॉन्च, पायलट कीजिए, उससे आपको फिर और इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। आपने रिसर्च किया तो हो सकता है आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, आपने अपने प्रोडक्ट को उस बेसिस पे डेवलप किया, आपने इसका प्रोटोटाइप बनाया, उस प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए और छोटे मार्केट में लॉन्च कीजिए, उसके बाद में आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूज दैट इंफॉर्मेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन योर प्रोडक्ट। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फिर बिग बैंग लॉन्च के लिए रेडी हो जाएगा। सो दोज आर वेरियस स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स मैंने भी आपसे जो बताया है ये सारे मैंने अपने स्लाइड में शेयर किया हुआ है, रेफर टू दैट स्लाइड एंड वहां पे ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, वहां पे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। अगर आपके पास है उस क्वेश्चंस का आंसर है, मतलब आप रेडी हो, you are ready with your idea to get started. So please refer to that and feel free to ask me and connect with me separately on a specific. मेरे most of the answer अभी थोड़े general हैं. The specific answers I would be able to share separately on a instances कि अच्छा ये अगर domain है, ये अगर problem है और ये product है तो उसका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर कोई और डोमेन है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लार्जली स्ट्रैटेजी यही होती है जो मैंने बताया है। मेनी टाइम एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूशन थोड़ा डिफर कर जाता है, 10-20% डिफर करता है और 80% लार्जली यही प्रिंसिपल होता है, जिसका रिटन नोट्स मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट कि उसको आप रेफर कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कनेक्ट विथ मी, आई विल टेक यू इन डिटेल। इज दैट ओके मुस्कान? डू लेट मी नो एनीथिंग आई एम मिसिंग. I can further probe and dwell down. Yes, sir. Okay, so sir, my next question is it okay to compete in a market skimming through trending products and prices? Absolutely okay. And इसकी भी काफी strategies होती है कि आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो. But I would definitely endorse this particular idea. बिकॉज आप देखोगे कितनी जो भी स्टार्टअप्स होते हैं या जो भी कंपनीज होती है, whenever they launch their product or services, they have done enough amount of research कि कस्टमर को what is the value proposition that they are offering to the customer and customer उसके लिए क्या वैल्यू पे करने को तैयार है, राइट? एंड वो रिसर्च करने के बाद में दे डिसाइड एंड कम अक्रॉस कि कौन सी स्ट्रेटजीज लगानी चाहिए। इसको काफी कुछ आती है, आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी से आती है, प्राइसिंग एंड आपकी व्हेनेवर यू लॉन्च एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप उस प्रोडक्ट को एक प्राइस दोगे और उस प्राइस पे आप कुछ फीचर्स लॉन्च करोगे एंड एज द फीचर्स इंक्रीज आपकी वैल्यू भी बढ़ती है कि चलो आप एक कुछ बेसिक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो तो इतने रुपए होंगे एंड उस बेसिक प्रोडक्ट में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं। इसके लिए एक अच्छा खासा रिसर्च करते हो कि आप देखते हो कस्टमर कितना पे कर सकता है, मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्या ऑप्शंस है, वो कितना पे कर रहे हैं, प्राइस बेंचमार्किंग स्ट्रेटजीज होती है एंड कस्टमर
का रियल प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए कितना एक्स्ट्रा पे कर सकता है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन इज देयर इज अ गुड सेशन कैन बी कंडक्टेड कि आप प्राइस बेंचमार्किंग कैसे करते हो, आपको क्या प्राइस लगानी चाहिए. आप जब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो लाइक मुस्कान मेंशन की स्कीम्स कौन सी लॉन्च करनी चाहिए. दैट विल हेल्प यू टू जनरेट डिमांड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल हेल्प यू टू गिव यू द डेटा. बिकॉज आप क्या करते हो, आप डेटा से you analyze your data and basis that information you decide your next execution strategy कि आप अगला एक्शन क्या लोगे. तो मेनी ओकेजन हम ये सारे स्कीम लॉन्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट को टेस्ट करने के लिए कि मार्केट का रियल पोटेंशियल क्या है एंड मार्केट में एक्चुअली क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है. एंड दैट इज द रीजन आई स्ट्रांगली एंडोर्स इट इज मस्ट टू डू. बिल्कुल स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए. हैविंग सेड दैट, एक मार्केट में ऐसा नोशन बन चुका है कि आप जब स्कीम्स चलाएंगे तभी कस्टमर खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे एक्सेट्रा. एंड आपको अगर स्कीम चलानी है तो आपको डिस्काउंट ही देना है, प्रोडक्ट को सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस पे देना है, जहां पे आप काफी सारे पैसे लूज करते हो एंड देन योर कंपनी इवेंचुअली बिकम अनवायबल, सस्टेनेबल नहीं हो जाती है. एंड हैज आई स्ट्रांगली एडवाइज कि दिस इज अ पावरफुल टूल, बट इसको बहुत ही कॉशन के साथ में यूज करना चाहिए बिकॉज इट इज सेटिंग सर्टेन बेंचमार्क एंड कस्टमर उसको कई बार बेंचमार्क मार के चलते हैं. तो इसके लिए आई कैन कंडक्ट अ सेपरेट सेशन ऑल टुगेदर कि आपकी प्राइसिंग, आप जब भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, शुड बी योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग स्कीम्स एक्सेट्रा आपको कैसे लॉन्च करनी चाहिए एंड व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी टेकन केयर ऑफ. सो इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट of your startup and your idea, and it must be, I endorse, ये बिल्कुल use होना चाहिए, but use it very cautiously because it's a double edged sword. ये आपके अगेंस्ट में भी काम कर सकता है, तो use it very very cautiously. Yes, sir, we will keep it in mind. So my next question is, how helpful can startup incubators and accelerators be for entrepreneurs? काफी heavy question है. I would say that especially with all due respect the kids, students of BIT and आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि now college is creating this platform where you get this opportunity to interact with the experts, industry stalwarts, and at least आपके दिमाग में जो आइडिया है आप थोड़ा यहाँ पे यूज कर पाओगे, आपका दिमाग ओपन होगा, आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, आप सीखोगे. Now all of this incubate, ये जितने भी incubation and जितने भी incubators होते हैं and the other platforms where I heard that Chhattisgarh government has also started, they have taken many initiatives, you know, they are also promoting the startup culture and they are taking multiple initiatives. S.V. Tiwari sir ने इस पे अच्छा खासा सेशन भी दिया है and subsequent speaker also took a good session. I would strongly advise, because क्या होता है when we are in the college और हमारे पास में just idea होता है, बहुत ज्यादा experience नहीं होता है, we are a novice and उतनी maturity नहीं होती है and believe you, maturity market में जाने के बाद में बहुत सारे ठोकरें खाने के बाद में ही आती है. And this incubator centers, such platforms, community, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आप ये सारे आपकी लर्निंग होती है और ये लर्निंग जो है एक्सपोनेंशियल होती है, इमेंस लर्निंग होती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस लर्निंग के लिए आपको आपके पैसे ज्यादा खर्च नहीं होते हैं. अगर आप खुद का अपना स्टार्टअप चालू कर रहे हो, इमीडिएटली पैसे वगैरह लगा के चालू कर रहे हो, काफी बार ऐसा होता है कि पैसे डूब जाते हैं, हमारा आइडिया काम नहीं करता है. बट व्हाट हैपेंस इन सच काइंड ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर एक्सेट्रा इज, आपके आइडियाज को आप डिस्कस करते हो विथ मेनी अदर एक्सपर्ट्स एंड बेसिस देयर एक्सपीरियंस आप अपने आइडिया को टेस्ट करते हो, आप इसको और स्ट्रेंथन करते हो. एंड ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको भी सीखने को मिलता है. आपका जो आइडिया होता है, आपका जो प्लानिंग होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं
which you would have not taken into consideration, जो आपको पता चलेगा. While you be part of such incubators, such platforms, such community, and such sessions, so I strongly advise and request, please be part of such ecosystem. Back days in our time, we didn't had those kind of opportunities, and हमको थोड़ा लेट में रियलाइज हुआ. एंड आप लोगों के साथ में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कॉलेज इज रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. तो प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग यू ऑल पार्ट ऑफ सच अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, एंड आप लोग छत्तीसगढ़ के सबसे ब्रिलियंट माइंड हो. आप लोगों के पास में बहुत टैलेंट है, एंड इस टैलेंट को अनलिश करने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एट सच यंग एज, एंड आप लोगों को इसका बेस्ट यूज करना चाहिए. इफ यू रिमेंबर, मैंने जो स्लाइड, ऑल्दो मार्केटिंग रिसर्च पे मेरा सेशन था, बट मैंने शुरू के 5-10 स्लाइड में केवल स्टार्टअप एंड अपॉर्चुनिटीज पे बातचीत की थी. इफ यू रिमेंबर, सेकंड जो थर्ड स्लाइड थी कि इंडिया में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप और आप लोगों के सामने में. ये अपॉर्चुनिटीज आज से 20-25 साल पहले, 10 साल पहले नहीं थी, बट पिछले 5 सालों में ये अपॉर्चुनिटीज मल्टीफोल्ड हो चुकी है. आई ऑल्सो प्रेजेंटेड इन अ स्लाइड कि इंडिया के जो टॉप 10 स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, they all started their startup at the age of 20-21 years while they were part of their colleges, and उनको वो atmosphere मिला, and they had a strong belief कि they can do that, and by learning a lot and काफी ठोकर खाते हुए भी उन्होंने ultimately they were persistent on their idea and they wanted to deliver something, and eventually they ended up delivering this. तो सिमिलरली आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. यू शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. इफ आई टेक अ नेम एज एन मिस्टर विजय शेखर शर्मा, हु इज द एंटरप्रेन्योर, हु इज फाउंडर ऑफ पेटीएम, द इंडिया सेकंड बिगेस्ट यूनिकॉर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम. 1998 में उन्होंने ये आइडिया लेकर के आया था. ही वाज कंसिस्टेंट. 2010 में उन्होंने पेटीएम लॉन्च भी किया, तभी भी उतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिली. बट वन फाइन नाइट डीमोनेटाइजेशन 2016 में अनाउंस हुआ, एंड हिज आइडिया took off like anything, and he became the India's biggest entrepreneur. So likewise, I do believe कि BIT में ऐसे बहुत सारे talented लोग हैं, and आप लोगों के सामने ये अच्छी opportunities हैं in the form of incubators and various other platform. Make the best use of it. इसमें आपको बस अपना टाइम लगाना है. This is the best time you have. जब आपके पास में टाइम की कोई कमी नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास में. Make the best use of your time. Thank you so much, sir. Now, for other questions, I would like to call Pratyush. Pratyush, over to you. Thank you, Muskan. So yeah, moving forward to the next question. Where should one go, or whom should one reach out for funding if he or she has a proper startup idea or its roadmap? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इनफैक्ट एज अ स्टूडेंट और हम यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, आइडिया सबके दिमाग में आता है, बिकॉज आइडिया के पैसे नहीं लगते हैं, बट उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे लगते हैं. दैट्स वेयर वी ऑल लुक फॉर द फंडिंग, एंड दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड आई हैव सीन मेनी टैलेंटेड एंड वेरी गुड पीपल जिनके दिमाग में बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया होता है, बट उस आइडिया को एक्सप्लोर ही नहीं करते कि यार हमारे पास तो फंड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है. एंड आई बिलीव यू मी, पिछले 5 से 10 सालों में इंडिया का इकोसिस्टम हैज चेंज ड्रामेटिकली. बहुत बड़ा चेंज आया है. आज आई वुड डेफिनेटली से, आई वुडंट डिस्कार्ड दिस फैक्ट कि फंडिंग वाज अ प्रॉब्लम. आज से 5-10 साल पहले फंडिंग आसानी से नहीं मिलती थी, बट स्टिल जिसको करना है वो कर लेता है. आई एम श्योर यू वुड हैव सीन कैप्टन गोपीनाथ के जो कैप्टन गोपीनाथ के लाइफ पे इंस्पायर्ड मूवी आई है. आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा. इट वाज अ साउथ मूवी और उसका हिंदी रीमेक भी हुआ है. कैप्टन गोपीनाथ ने उस टाइम पे ही हैड एम्बिशन कि नॉर्मल इंसान को मुझे फ्राई करवाना है. ही हैड अ ह्यूज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट स्टिल ही वाज एबल टू डू दैट, राइट? सो ट्रस्ट मी, फंडिंग विल नेवर बी अ इशू. हैविंग सेड दैट, अब तो और भी इशू नहीं है. अभी अगर इशू अगर कुछ है, आइडिया जनरेट करना भी इशू नहीं है, फंडिंग भी इशू नहीं है, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना इज द इशू, जहाँ पे लोग अटक जाते हैं. Now, to coming back to the question,
सी अगर इफ यू हैव अ गुड आइडिया, उस आइडिया को आपने वैलिडेट किया है बाय कंडक्टिंग लेट्स से मार्केट रिसर्च, कुछ लोगों से, मेंटर्स से आपने डिस्कस किया है, एंड दे हैव आल्सो यू नो वैलिडेटेड कि हाँ यार तेरे आइडिया में दम है, and you can it has a good potential for scaling up. So there are 2 to 3 ways to go about it for the funding. Number one is, in my previous speakers who talked in this very forum, उन्होंने एक अच्छा खासा सेशन दिया है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या क्या बहुत सारे उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं. दे हैव वेरियस स्कीम्स, वेरियस इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स जहाँ पे वो ऐसे स्टार्टअप्स को फंड देते हैं. आई वॉज रीडिंग and I read that up to 50 lakh rupees interest free funds Chhattisgarh government provide to the ideas that get selected. So this is one you know scheme. The other thing is that is a state government scheme. Similarly, there's a prime minister and Ministry of Corporate Affairs. They have similar schemes. ये scheme time to time change होती रहती है, and but any point in time definitely there is some scheme जो होती रहती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 2 के अलावा जहां पे आपको आइडिया एक इन अ पर्टिकुलर फॉर्म आपको प्रेजेंट करना होता है, आपको सबमिट करना होता है, एंड दे विल टेक योर आइडियाज. इसके अलावा बहुत ही अभी अच्छा चीज चालू हो रहा है. वेरी रिसेंटली आई केम अक्रॉस इन यूके देयर इज अ वेरी फेमस प्रोग्राम. आई एम वेरी श्योर द लाइक इंडिया में कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया था. अगर आप सिंगिंग आपकी पैशन है, आप and then you are looking for a platform जहाँ पे आप सिंगिंग का टैलेंट प्रेजेंट करना चाहते हो, तो लोग इंडियन आइडल एंड इसी टाइप के मल्टीपल शोज में पार्टिसिपेट करते थे. अगर आपको डांसिंग में पैशन है तो डांसिंग के काफी सारे प्लेटफॉर्म है, बट स्टार्टअप आइडियाज के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आज तक नहीं था इंडिया में. वर्ल्ड वाइड देयर वर कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स, सिमिलर प्लेटफॉर्म्स वर अवेलेबल कॉल्ड शार्क टैंक, एंड आई रिसेंटली केम टू नो, आप लोग काफी लकी हो, सोनी में इनफैक्ट शार्क टैंक इंडिया में आ रहा है एंड ये अभी चालू हो रहा है. तो इफ एनी ऑफ यू आर यू नो इंटरेस्टेड, यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन सच प्लेटफॉर्म्स. तो अभी तक मैंने आपको ये सब जो भी बताया, ये सारे अनपॉपुलर आइडियाज है, ये तो मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी पॉपुलर वेज एंड मीन्स. देयर आर, आप लिंक्डइन पे अगर आप सर्च करेंगे, आपको सैकड़ों हजारों एंजल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, सैकड़ों हजारों एंजल इन्वेस्टर्स जो आपके आइडिया को सिर्फ और सिर्फ आइडिया पे वो इन्वेस्ट करते हैं. आप अपने आइडिया उनको प्रेजेंट कीजिए, उनको आइडिया अच्छा लगता है, आप उनको लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, आप अपना आइडिया प्रेजेंट कीजिए, उनको अच्छा लगता है, दे विल प्रोवाइड यू इनिशियल फंडिंग, एंड नॉट जस्ट इनिशियल फंडिंग, उस इनिशियल फंडिंग से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए. दे विल ऑल्सो मेंटर यू कि आपका आइडिया जब उस फंडिंग से जब टेक अप हो जाता है, स्लोली इट इज स्टार्ट डेवलपिंग एंड वो बिजनेस ग्रो होता है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है फंडिंग की, and then they will help you to get connected with a right kind of VCs. तो आप पहले एंजल इन्वेस्टर से आप प्री सीड फंडिंग उठाते हो, देन आप सीड फंडिंग उठाते हो, एंड देन आप VCs वगैरह से आते हो जो आपको बिगर चेक्स कट करते हैं, which will be likes of सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C, एंड इस टाइप की फंडिंग की जरूरत पड़ती है. एंड there are many people in the LinkedIn who will be able to help you. I will always be happy to help you and guide you, any of you are looking forward to some help with regards to funding. Having said that, फंडिंग के बारे में I can probably have one more session in detail session जहाँ पे मैं बताऊंगा कि फंडिंग आपको कैसे मिलती है, फंडिंग के प्रॉस क्या है, फंडिंग के कॉन्स क्या है, एंड फंडिंग कब लेनी चाहिए, फंडिंग क्यों लेनी चाहिए, फंडिंग क्यों नहीं लेनी चाहिए. I can have a separate session altogether about it. And in the meanwhile, there are a few mentors I would strongly advise, like Ankur Warikoo. Ankur Warikoo is one of the a very good advisor. I would strongly suggest कि आप LinkedIn पे Ankur Warikoo से connect कीजिए and do follow him. And similarly, there are few more people. I can share the list of those 8 to 10 people. आप कुछ नहीं कीजिए, बस आप LinkedIn पे उनको सर्च कीजिए और फॉलो बटन दबा दीजिए. That's it. आप जब भी लिंक्डइन आप अपना पेज ओपन करेंगे, विथ हम्बल रिक्वेस्ट, एज एन आप हो सकता है फेसबुक इंस्टाग्राम में टाइम स्पेंड करते हो, एंड आई वुडंट से कि नहीं करना चाहिए, इट हैज इट्स ओन प्रोस एंड कॉन्स. जहां से नॉलेज मिल रहा है ले लो. आई विल स्ट्रांगली एडवाइज कि लिंक्डइन पे भी आप टाइम स्पेंड करना चालू कीजिए. लिंक्डइन पे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा, विच विल हेल्प यू. सो देयर आर फ्यू
5 to 10 पीपल, आप बस उनको फॉलो कीजिए एंड वो ऐसे अच्छे पोस्ट डालते रहते हैं, और वो लिंक्डइन में आप जैसे उनको फॉलो करेंगे आपके टॉप फीड में आएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार फंडिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दिस इट्स वेरी वेरी इजी नाउ। आज से मतलब कुछ सालों तक पहले ऑल ऑफ दिस वाज नॉट अवेलेबल। यू गाइस आर सो लकी कि आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। इट इज ऑल अबाउट यू कि आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं, एंड वी कैन हेल्प यू टू चैनलाइज एंड मेंटर यू एंड गाइड यू कि ये सारे इंफॉर्मेशन को आप कैसे एक प्रॉपर अच्छे तरीके से इन अ गुड फैशन यू कैन यूज इट, सो दैट इन अ लीस्ट पॉसिबल टाइम यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। तो फंडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको कुछ अनपॉपुलर वेज बताए विच आर वेरी वेरी न्यू, एंड देयर आर पॉपुलर वेज टू अप्रोच द एंजल इन्वेस्टर, एंड देन इवेंचुअली यू गेट द सीड फंडिंग एंड सीरीज ए फंडिंग फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ VCs, जो डिपेंडिंग अपॉन योर आइडिया एंड पोटेंशियल वो डिफरेंट काइंड ऑफ चेक कट करते हैं। So I can have a separate session all together. As of now के लिए मेरा रिक्वेस्ट इसका ये रहेगा, लिंक्डइन पे जाओ एंड ये कोई 4-5 लोग हैं उनको आप फॉलो कीजिए। Yes, Pratyush. Thank you for the answer. And then moving forward to the last question, maybe. Chhattisgarh is a fast developing state. Many new projects come with greater opportunities in the field of technology. If a scientific or technological opportunity comes, what is the acceptance? Not everyone accepts technology upgrade like ours. Oh, I'm very sorry, Pratyush. Last bit I could not hear properly. Could you please repeat again? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chhattisgarh is a fast developing state. Many new projects come with greater opportunities in the field of technology. If a scientific or technological opportunity comes, what is the acceptance level of Chhattisgarh? Not everyone accepts technology upgrade in the states like ours. I think ये बहुत ही अच्छा और रिलेवेंट क्वेश्चन है, एंड जस्ट टू टेल यू कि इसका जो आंसर है वो काफी अफर्मेटिव है, काफी पॉजिटिव है। सो फार यस, पीपल डू कंपेयर कि छत्तीसगढ़ ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, एंड वी ऑफन कंपेयर विथ लाइक्स ऑफ कर्नाटका, हैदराबाद, let's say Gurgaon, Pune, Mumbai, and these are the states and the cities which have developed a lot, and unfortunately we believe कि छत्तीसगढ़ पीछे रह गया है। But I'm tell you there is one if I were to give you one advice, if you want to be an entrepreneur और आप अपना स्टार्टअप या आइडिया को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, अपने दिमाग में 3 से 4 जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं वो होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको इनकलकेट कर लो, इट विल रियली हेल्प यू। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है और एक जो एंटरप्रेन्योर होता है या जो भी अपना आइडिया और स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, उसके अंदर में 3-4 चीजें बहुत ही कॉमन है। नंबर 1 इज वो काफी पॉजिटिव होता है, उसको ना हर जगह पे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, इवन एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अगर कहीं पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो दैट पर्सन लुक्स एट लाइक अपॉर्चुनिटी, यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मतलब यहाँ डेवलपमेंट मैं कर सकता हूं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इंडिया ऑलवेज लुक्स एट US, चाइना, यूरोप, जापान, ऑल दोस काइंड ऑफ डेवलप्ड नेशन, एंड वी ऑलवेज कंसिडर कि यार वो जो इकोनॉमी है, जितनी बड़ी इकोनॉमी है, हम बिल्कुल उसको क्रॉस कर सकते हैं, वी डू हैव अ पोटेंशियल। एग्जैक्टली दैट वे छत्तीसगढ़ एंड BIT के जो स्टूडेंट है, मुझे लगता है कि इसको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की देरी है, एंड बहुत अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। एंड इफ यू वांट टू आस्क मी स्पेसिफिकली, नंबर 1 लाइक आई मेंशन, अच्छा कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां पे मैं बोल रहा था कि क्या क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, लेट मी क्विकली कवर। एक तो उसमें काफी पॉजिटिव होता है, दैट पर्सन इज वेरी पॉजिटिव, लुक्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज, क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, एंड दे हैव अ प्रॉब्लम सीकिंग अप्रोच, यार प्रॉब्लम क्या है, एंड प्रॉब्लम के बाद में वो सिर्फ प्रॉब्लम में अटक नहीं जाते, वो सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं, उनको क्वेश्चन को सॉल्यूशन समझ में आता है। अगर ये सिर्फ 4 से 5 चीजें आपके पास में है, वो क्यूरियोसिटी है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एटीट्यूड है, खत्म। एंड इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ये मतलब कि आपने कुछ भी पढ़ाई की हो,
कभी भी आ सकती है. लाइक one of the biggest entrepreneur of India, Oyo's co-founder Mr. Ritesh Agarwal, if you want to look at, he was in the school जब उसको ओयो का आइडिया आया तो उसने पढ़ाई भी नहीं की थी, बट ही वाज वेरी कन्विंस्ड कि यार इस आइडिया में दम है, एंड ही वाज एबल टू मेक इट अ सक्सेसफुल आइडिया. तो ये 4-5 चीजें मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको गार्ड बांध लीजिए और इसको जितना अपने अंदर डेवलप कर सकते हो कीजिए. आज के डेट में यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं, इसको आप कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, आप अपने आप को इसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हो. दैट्स अ बिहेवियरल पार्ट ऑफ इट. Now the second part, which is pertaining to this particular question, is the opportunities क्या क्या available हैं. So like I was mentioning कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट has realized, in fact आज के डेट में आप देखेंगे सारे स्टेट गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि आज के डेट में देखिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि जो मेरा स्टेट है वहां पे ज्यादा से ज्यादा जीडीपी ग्रो होनी चाहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करना चाहिए. और वो इनकम कैसे जनरेट करेंगे, वहां के जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनको केवल टैक्स से वो ज्यादा इनकम नहीं जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि वो टैक्स जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स या बाकी सारी चीजें होती है, दैट इज अ बर्डन एंड उससे लोग खुश भी नहीं होते हैं. इन जनरल टेंडेंसी ये है हमारे यहाँ पे कि हम टैक्स इवेट करना चाहते हैं, हम टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली. बट ठीक है, दैट्स अ माइंडसेट. बट स्टेट गवर्नमेंट को अब समझ में आ गया कि यार इसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते, या हम सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं. एंड हैज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर नाउ ट्राइंग टू बाइफरकेट देयर अर्निंग सोर्सेस, एंड वो कॉर्पोरेट एंड कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से टैक्सेस लेकर के आना चाहते हैं. एंड हैज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू नाउ इज दे आर प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इससे 2 से 3 चीजें होती है. नंबर 1, इंडस्ट्रीज आएंगी तो वहां पे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो और ज्यादा टैक्स पे कर पाएंगे. ठीक है. दूसरा, ये जब इंडस्ट्रीज आएंगे तो ये इंडस्ट्री भी टैक्स पे करती है, तो ओवरऑल आपके जो स्टेट है उसका इनकम बढ़ेगा. एंड हैज स्टेट्स जो है वो ज्यादा खर्च कर पाएंगी और ज्यादा अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएंगी, ग्रोथ कर पाएंगी. तो आपको फंडामेंटली ये तो समझ में आ गया है कि किसी भी स्टेट के लिए स्टार्टअप को प्रमोट करना उनके बेनिफिट में है, इसलिए वो काम करेंगे. ठीक है. अब ये अगर ये चीज फंडामेंटली समझ में आ गई कि यार अब तो उनको ये करना ही पड़ेगा, मजबूरी भी हो गई और उनका इंटरेस्ट भी है, तो वी आर सेफ एंड सिक्योर कि चलो ठीक है, वी हैव अ गुड ग्राउंड. नाउ द अदर पार्ट, एज फार एज छत्तीसगढ़ स्टेट इज अ कंसर्न, सी छत्तीसगढ़ में देयर आर फ्यू वेरी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटीज व्हिच आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स. स्पेशली मैं छत्तीसगढ़ काफी पिछले 10-15 सालों से छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट को मैं फॉलो कर रहा हूं, that what kind of steps and initiatives they have taken to promote the startup. And I must say that irrespective of कोई भी गवर्नमेंट आए, बट छत्तीसगढ़ स्टेट को ये तो समझ में आ गया है कि भाई हम छत्तीसगढ़ स्टेट अभी तक के मिनरल रिच स्टेट था, एंड काफी सारा जो फोकस था वो केवल मिनरल्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एंड उस पर हम कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, उसी पे था. बट पिछले 5 से 10 सालों में वो चीज एक्चुअली धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, एंड यू विल सी मेनी थिंग्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ न्यू रायपुर एंड लॉट ऑफ ई-चिप, जो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जो एक्चुअली स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है, एंड लॉट ऑफ सच इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन जहां पे वो स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं. नया रायपुर, रायपुर के अराउंड, एंड मे बी सम अदर स्टेट्स व्हिच आई माइट नॉट बी अवेयर ऑफ. एसवी तिवारी जी एंड मेनी सच इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वुड बी अवेयर. आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि आप इन एक्सपर्ट से आप कनेक्ट कीजिए, वो आपको काफी अच्छे से गाइड कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. अनफॉर्चुनेटली मेरी नॉलेज उस लेवल तक नहीं है, बट जो भी मेरे नॉलेज में आई वुड डेफिनेटली से, बट आपको बहुत ही आसानी से इंफॉर्मेशन मिल सकती है. आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस गूगल करना है. आपको छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट को की जो वेबसाइट है वहां पे जाके अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है. सो इसका मैं शायद स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पा रहा हूं कि ये 1 2 3 4 5 6 स्कीम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज ये चेंज होती रहती है, एंड ना ही आई वुड बी हम्बल टू से कि मुझे याद नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली वॉच फॉर द फैक्ट कि अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये आप गूगल करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा.
And I have personally observed कि छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट is coming up with multiple opportunities. आप definitely Google कीजिए, आपको पता चलेगा. Like I was saying, they have formed an incubator और अभी भी उनकी स्कीम चल रही है. एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप जाकर के अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, अपना आइडिया सबमिट कीजिए. वो अप टू 50 लाख रुपीस इंटरेस्ट फ्री फंडिंग भी देने को तैयार है. तो इस तरीके के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी कंपनीज को वो सिग्निफिकेंटली प्रमोट कर रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए रिसोर्सेस और खर्चा बहुत कम लगता है. टेक्नोलॉजी कंपनीज को केवल एक जमीन चाहिए होती है, मेनी ओकेजन अपना स्टार्टअप और अपना कंपनी चालू करने के लिए. बहुत सारे परमिट्स नहीं चाहिए, बहुत सारे लाइसेंसेस नहीं चाहिए, और वो कुछ ऐसा नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए होती उनको. बस एक छोटा सेटअप चाहिए होता है. आप देखेंगे जैसे मेरी जो पुरानी कंपनी है बिजोंगो, मैं जहां पे काम कर रहा था, ये कंपनी मुंबई के एक फ्लैट में चालू हुई थी, जहां पे ये 3 IIT बॉम्बे के दोस्त हैं, उन्होंने ये इस कंपनी को चालू किया था. इनका 2 BHK का फ्लैट है, जहां से उन्होंने इस आइडिया को लेकर के उन्होंने कंपनी चालू की थी. केवल पिछले 5 सालों में अभी तक के वो $100 मिलियन का फंडिंग अभी तक के वो रेज कर चुके हैं. सच अ ह्यूज अमाउंट. एंड अभी तक के वो ऑलरेडी $600 मिलियन की कंपनी बना चुके हैं इन जस्ट 5 years. इट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, आई वुड से. इट्स अमेजिंग अचीवमेंट. एंड ये केवल 5 सालों में. एंड दे आर वेरी वेरी यंग. एंड एक छोटे से टेक्नोलॉजी स्टार्टअप उन्होंने एक फ्लैट से चालू की थी. तो टेक्नोलॉजी कंपनीज चालू करना बहुत ही सिंपल है. इंडिया ने अब काफी सिंपल भी कर दिया. कंपनी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, रजिस्टर करना इज फार इजियर, एंड ब्यूरोक्रेसी अभी काफी इजी भी हो रही है. आई विल स्ट्रांगली एडवाइस एंड एंडोर्स कि आप इसको एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा और, एंड थोड़ा आप गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा. एंड जो भी मैं आपको आइडियाज बता रहा हूँ कि स्टार्टअप्स को लेकर के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कुछ सेशंस वगैरह कर रही है, कुछ इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं. आप बस एक सिंपल गूगल सर्च मारेंगे, शुरू के 3-4 लिंक में मिल जाएगा. प्लीज गो थ्रू एंड डू दैट. सो ऑल इन ऑल आई विल से कि अच्छा, एक और लास्ट बिट इसमें कि छत्तीसगढ़ पर से वाई छत्तीसगढ़. अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रखा है कि कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ऑल ऑफ दिस गवर्नमेंट, यहाँ पे जो कंपनीज है वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड हो गई है. इनफैक्ट इनके थोड़े एडवर्स इंपैक्ट भी हो रहे हैं. यहाँ पे इतनी कंपनीज आ चुकी हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ चुके हैं. एंड नाउ दिस कंपनीज आर लुकिंग फॉर अ हेवंस और फॉर द प्लेसेस जहाँ पे कि उतना पॉपुलेशन और डेंसिटी नहीं है, बट टैलेंट है. एंड दैट वेज आई सी छत्तीसगढ़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी विच इज सेंट्रली लोकेटेड इन इंडिया. आप लोगों के जैसे अच्छा टैलेंट अवेलेबल है, टैलेंट पूल अवेलेबल है, एंड वहां पे लैंड वगैरह रिलेटिवली मुंबई एंड बैंगलोर के कंपैरिजन में सस्ते में मिलता है. तो और टैक्सेस भी रिलेटिवली कम है, इसलिए काफी सारी कंपनीज आर लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज, एंड छत्तीसगढ़ आ रही है. तो बिफोर ये मतलब कंपनीज आ रही हैं, आप लोग भी अपना स्टार्टअप लेकर के आप वहां पे चालू कर सकते हो. एंड छत्तीसगढ़ में आप अपनी कंपनी चालू कीजिए, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसको काफी प्रमोट कर रही है. So please, these are the certain pros and advantages for being in Chhattisgarh and being a part of BIT. Make the best use of it. My sincere request. Yes, sir, sure. Thank you for this explanation. And yes, with this, I would like to request everyone, if they have any doubts, they can switch on their microphones and ask directly to sir. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, Sir. Yes, Danisha, I can hear you. Yes, sir. Yes, sir. I attended your last session. It was wonderful. Gained a lot of information from that and a knowledge. I've also shared a link of that slide. Whoever have not attended that previous session can have that slide. And also, sir, my question today is not related to startup, but about marketing, since you are a very experienced mentor in business and marketing industry. So I have just passed out my mechanical engineering. Since I don't have much interest in this field, I have started learning digital marketing from past 1 year. And also I have done few freelance works. But sir, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर कि मैं अपनी फील्ड कौन सी चूज करूँ, उस पर एक्सपर्टीज करूँ. लाइक मुझे SEM भी आता है, SEO भी आता है, और बाकी फील्ड्स भी आती है सर, लाइक
थोड़ा बहुत वेब डिजाइनिंग भी आता है और सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आता है, तो सर मैं चूज कैसे करूं कि सर मुझे इस चीज में एक्सपर्टीज करना है सर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू कि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आउट ऑफ योर इंटरेस्ट आपने ये सारी चीजें सीखी हैं, एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. आज के डेट में आपके पास में देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज इफ यू वांट टू लर्न. आपके पास है यूट्यूब में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने फ्री कोर्सेज हैं, आप सीख सकते हो. बट आपने एटलीस्ट पहला पड़ाव पार कर लिया है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्या आपने ये सारा सीख लिया, आप इसको यूज कैसे करो, है ना? यस सर. स्ट्रांगली एडवाइस इज कि अगर आप लिंक्डइन एज अ कम्युनिटी अगर आप उसको यूज करोगे, ठीक है, आप लिंक्डइन में देखोगे कि आज के डेट में एक इंडिया में पिछले कुछ सालों में देयर इज अ ड्रामेटिक शिफ्ट दैट हैज हैपेंड द वे इंडिया एंड द करंट जनरेशन इज वर्किंग. इससे पहले क्या होता था कि काफी जगह पे ना लोग एकदम ट्रेडिशनल तरीके से काम करते थे कि भाई हम पढ़ाई लिखाई करेंगे इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, उस स्ट्रीम में हम एक्सपर्टीज करेंगे एंड कुछ हम डिग्री सर्टिफिकेट अर्न करेंगे और उसी के बेसिस पे हमको इंटरव्यूज होंगे या नौकरी मिलेगी. बट अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में इंडिया में जो फ्रीलांसिंग वर्क है, जो गिग वर्क है, वो काफी ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा. अगर आप लिंक्डइन पे सर्च मारेंगे या फिर आप कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को फॉलो करेंगे, कुछ लोगों को अगर आप फॉलो करेंगे, आपको रियलाइज होगा कि देयर आर मेनी सच कंपनीज एंड स्टार्टअप हु आर लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड पर्सन लाइक यू, जिनको एसईओ एक्सेट्रा ये सारा कुछ आता है, एंड जो फुल टाइम नहीं, सिर्फ एज अ who wants to work and वो अपना कुछ they want to get started. They are looking for an opportunity to present their skill and get the work started rather than being a full time role. So what I would advise Danish is that typically अगर आपका स्ट्रीम वो नहीं है और फुल टाइम अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो फुल टाइम नौकरी पाने में भी थोड़ी मुश्किल होती है. बट इसमें there are many opportunities available जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कीजिए. वहां पे आपको वो इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, ठीक है? कुछ फ्री इंटर्नशिप होती है, कुछ पेड इंटर्नशिप होती है जहां पे आपको पे भी करेंगे. आप उनके साथ में काम करेंगे 2, 4, 5, 8 घंटे डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ वर्क एंड कंपनी का रिक्वायरमेंट. आप इस तरीके से इंटर्नशिप करते जाइए. जब इंटर्नशिप करेंगे आपको भी पता चलेगा, आप बस अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए फॉर द इंटर्नशिप. आपको भी पता चलेगा कि आपको जो नॉलेज आपने जो सीखी है, थ्योरेटिकल नॉलेज और जब प्रैक्टिकली आप जब काम करते हो, दोनों में डिफरेंस कितना है. नॉलेज इमेंसली, है ना? यूट्यूब पे और जितने भी अपने यूडेमी पे कोर्सेस होते हैं, मैंने बहुत सारे मतलब किए सर, और सबने ये देखा कि सब कुछ थ्योरेटिकल है. मतलब वो सिखा देंगे कि आप कैसे एडवर्ड्स यूज कर सकते हैं या कोई भी चीज हो, टॉपिक, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल जब यूज करेंगे सर, किसी के लिए काम करेंगे, तब वो चीज अलग होती है. मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती है वो सब. तो मैंने फिलहाल तो अभी बेसिक सीखा है, थोड़े बहुत फ्रीलांस प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन अगर मुझे इस चीज में एक्सपर्टीज करना है सर, तो वो मैं किसी सीनियर लेवल के या फिर एक्सपीरियंस मेंटोर से सीख पाऊंगा ना सर, जो कि सिर्फ तभी पॉसिबल है किसी इंडस्ट्री, मतलब किसी स्टार्टअप में या किसी कंपनी में. क्योंकि फ्रीलांसिंग में सर पैसे तो बन जाएंगे, लेकिन वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा सर सीनियर लेवल का. ये काफी फेयर एक्सपेक्टेशन है दानिश एट योर फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू. बट आई वुड बी sorry, I don't want to dishearten you, but आप देखिए how does it work. See, this has to be a win-win situation. अभी देखिए, हो सकता है कि there are few mentors आप LinkedIn पे लोगों को कनेक्ट कीजिए कि आप सीखना चाहते हो, आप उनसे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते हो, and you should definitely reach out कि सर there are few people who genuinely take interest, जो सिखाना चाहते हैं, ठीक है, एंड मेंटर करते हैं. आपको प्रैक्टिकली कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी देंगे, रियल टाइम प्रॉब्लम देंगे, एंड आपको रियल टाइम आप जब काम करोगे तब आप सीखोगे, ठीक है? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, टिपिकली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट इस तरीके के लोग काफी कम है, बिकॉज मोस्टली जब लोग मेंटरशिप को लोग फुल टाइम नहीं देते हैं, ये पार्ट टाइम ही देते हैं. एंड टिपिकली व्हाट पीपल प्रेफर टू डू इज दैट दे ऑफर इंटर्नशिप, एंड वो बोलते हैं कि आप मेरे साथ इंटर्नशिप कीजिए. आप जब इंटर्नशिप करोगे तो आप उसी दौरान, आप उसी ड्यूरेशन में मैं आपको सिखा भी पाऊंगा, हम साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे, आप भी सीखोगे, एंड आई विल बी आल्सो एबल टू स्पेंड सम टाइम विथ यू. तो इफ यू वांट टू टेक माय एडवाइस, आई वुड से कि
आप ट्राई कीजिए, अगर ऐसे कोई लोग हैं जो आपको केवल मेंटर करे, एडवाइस करे, 1-1 घंटे का सेशन ले, मे बी वंस इन अ वीक, ऐसे लोग Yeah. कम हैं। बट इंटर्नशिप अगर आप ज्वाइन करोगे, जहां पे आपको फ्री इंटर्नशिप देने वाले, यानी फ्री इंटर्नशिप बहुत लोग अभी ऑफर कर रहे हैं, उन कंपनी Yeah. की रिक्वायरमेंट है कि यार हम अभी स्टार्टअप है, हम पैसे पे नहीं कर सकते हैं, बट वी आर लुकिंग फॉर पीपल जो हमारे लिए काम करेंगे, एंड हम उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वगैरह देंगे जहां पे आप भी सीखोगे और कंपनी का काम भी हो जाएगा। ऐसे काफी सारी कंपनीज है, लिंक्डइन पे इनके पोस्ट आते रहते हैं। Yeah, मैंने देखा है कि इनके साथ में भी एसोसिएट कीजिए एंड कीप ट्राइंग। अब जब कूद जाओगे ना इस इंडस्ट्री और इस टाइप के एनवायरनमेंट में, तब आपकी फिर लर्निंग अच्छी होगी, एंड इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। सो आई विल स्ट्रांगली एडवाइस कि बी पार्ट ऑफ सच इकोसिस्टम, एंड देन इवेंचुअली ओवर द पीरियड यू विल बी एबल टू लर्न, बट डोंट हेजिटेट, जस्ट बी पार्ट ऑफ दिस। बिल्कुल कूद जाइए आप इसमें। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि स्टार्टअप में रॉकेट साइंस नहीं होता है, बट कुछ केसेस में जैसे कि कोई कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिट करना है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप टेक्नोलॉजी में, हाँ, तो मोस्टली अच्छी टीम चाहिए होती है या फिर काफी ज्यादा नॉलेज, साइंस या साइंटिफिक नॉलेज, तो उसके लिए सर कैसे होता है? लाइक कुछ इंडस्ट्री हम लोग देखते हैं कि जो इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है पहले से, जैसे स्पेस टूरिज्म है या फिर एनीथिंग एल्स, तो उसके लिए सर क्या अप्रोच रहना चाहिए? यार ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट आई टेल यू, मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये है कि ना, अगेन दिस इज पर्टेनिंग टू द आइडिया, बिजनेस आइडिया एंड योर इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल अगर आपका बहुत ही आप स्ट्रेंथ है इसमें, बट अगर आप एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, बी प्लान नहीं बना पा रहे हो, तो स्टिल उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो बट यस, व्हाट यू कैन डू इज दैट, आपका जो स्ट्रेंथ है आप उसमें फोकस कीजिए, आपको जो भी चीज अच्छा लगता है आप उसको अच्छे से सीखिए, एंड देन यू नीड टू पार्टनर। स्टार्टअप में आप देखेंगे कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो। मेनी ओकेजन हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कर लें और वी शुड बी वन मैन आर्मी। आई विल स्ट्रांगली एडवाइज, डोंट डू दैट। अगर आपने देखा भी होगा तो काफी सारे जो स्टार्टअप्स हैं, ये स्टार्टअप चालू होता है 2 से 3 लोगों से, है ना, जहां पे ऑल ऑफ दिस 2 to 3 पीपल, दे हैव डिफरेंट स्किल सेट, दे हैव डिफरेंट एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एरिया। आई एम श्योर कि अगर कोई स्टार्टअप में एंथुजियास्ट होगा तो सभी ने पिक्चर करके जो वेब सीरीज है वो जरूर से देखी होगी। तो देयर आर फ्यू पीपल हु आर गुड इन टेक्नोलॉजी, देयर आर फ्यू पीपल हु आर गुड इन आइडिया एग्जीक्यूशन, कुछ लोग अच्छे हैं जो आइडिएशन में काफी अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा बनाते हैं, बी प्लान अच्छा बनाते हैं। नाउ पर्टेनिंग टू योर क्वेश्चन समरजीत, तो आप स्टार्टअप में ये मत सोचिए कि अगर एक कुछ आइडिया है तो आप स्टार्टअप नहीं कर सकते हो, नहीं, आप उस पर फोकस कीजिए, आप ऐसे लोगों से पार्टनर कीजिए जो बाकी चीजों में अच्छे हैं, एंड वो लोगों के साथ में आप करके आपका स्टार्टअप आप सक्सेसफुल बना सकते हो। तो दैट्स दी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। द सेकंड इज कि आपने बोला कि यार कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज होती है जहां पे आपको हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लर्निंग चाहिए होती है ना, डीप लर्निंग चाहिए होती है, एंड वो काफी नीश है। ये आप कैसे सीख सकते हो? इफ आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, तो व्हाट आई हैव फाउंड इज कि देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म विच आर अवेलेबल आज के डेट में, स्पेशली कोर्सेरा जो कंपनी है, मैं पिछले 12 सालों से फॉलो कर रहा हूं, एंड दिस इज वन वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है। आप कुछ भी सीखना चाहते हो, सारे कुछ फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, यूडेमी में मल्टीपल इसके कोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड स्पेशली फॉर एग्जांपल आपने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत की है ना? जी सर। IITs, and forget about Indian IITs, especially worldwide there are many technical institutes आपके, be it MIT, be it Stanford, or be it any other best of the best technology or any universities। सबसे अच्छी बात ये हुई है आपके जनरेशन के लिए कि नॉलेज का कोई कमी नहीं रह गया। हमारे टाइम पे हम बुक्स पे डिपेंडेंट थे, लाइब्रेरीज में जाकर के छान मारना पड़ता था। आज के डेट में आप घर बैठे बैठे एक सर्च करोगे और आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस समरजीत कि आपका जो क्वेश्चन है वो काफी डोमेन स्पेसिफिक है, मे बी शायद मैं स्पेसिफिक आंसर अभी नहीं दे पाऊंगा, अपोलॉजीज फॉर दैट, बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि अपना कोर्सेरा, यूडेमी स्पेशली, एंड देयर आर फ्यू मोर आपके पर्टिकुलर डोमेन में जो भी एक्सपर्ट है, आपको वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा लगता है, आप उनकी वेबसाइट्स को सर्च कीजिए। आपको डेफिनेटली, मेरे को
I'm 75 to 80% कॉन्फिडेंट कि आपको अच्छे वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको ऐसे प्रोफेसर्स के वीडियोस एंड लेक्चर मिल जाएंगे जहां पे आप उस नॉलेज को आप सीख पाएंगे। जी सर, मैं फॉलो करता हूँ, मतलब लाइक edX भी एक है जिसमें MIT good, edX, ऑक्सफोर्ड, yes. उनके मैंने सारे कोर्सेज, मतलब जो उनके स्पेस से रिलेटेड और ऐसे जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं Yes. वो सब मैंने किए, बट स्टिल समहाउ कुछ चीजें जो रह जाती है कि टीम अप आपको करना है। Yes, so but second thing, तो ये जो है that is first thing to do, but second thing which is very important, as much as information and internet is a boon for you guys, एक प्रॉब्लम ये भी हो गई कि एक्सेसिव इंफॉर्मेशन हो गया है। अभी कंफ्यूजन हो जाता है यार कि हम ये करें वो करें, कहाँ पे करें, और हजारों वीडियोस है, सब तो नहीं देख सकते हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, और जो नेचुरली नहीं आती है, मे बी समहाउ हम जिस जगह से हैं, और बीआईटी में मैं खुद भी वैसा ही था, नेटवर्किंग इज वन थिंग जो उतना बढ़िया हमने यूज नहीं किया है ना। लिंक्डइन एज ए प्लेटफॉर्म हम उतना बढ़िया यूज नहीं करते हैं। आई वुड स्ट्रांगली से कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो नॉलेज तो अवेलेबल है, बट एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है ना। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि आप लिंक्डइन पे ऐसे लोगों से कनेक्ट कीजिए जो आपके इंटरेस्टेड डोमेन में बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है उनकी, उन्होंने ओवर द पीरियड काफी एक्सपीरियंस गेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर मेरे 2002 और 3 बैच मैकेनिकल के पास आउट है मिस्टर विद्यापति तिवारी। गेट में उनकी देर ऑल, मतलब वो और उनके बैच में जितने लोग थे, गेट में सभी का अंडर 20 रैंक था, एंड दे आर ऑल प्राउड एलुमनस ऑफ बीआईटी, और उन्होंने बीआईटी का नाम रोशन किया है। ये सारे लोग आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली में इन्होंने पढ़ाई की है, और उसके बाद इन्होंने यूएस में जाकर के पीएचडी की है। अभी वो जी टाइप के, जी एंड जनरल मोटर्स टाइप के अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं। अगर आप इनको लिंक्डइन पे अप्रोच करोगे और अगर आप इनको बोलोगे कि सर मेरे को इसमें इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू लर्न एंड कुड यू प्लीज गाइड मी एंड मेंटर मी एंड हेल्प मी, दे वुड डेफिनेटली सीक फॉर सच कनेक्शंस, जहां पे ऐसे लोगों से कनेक्ट कीजिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड करेंगे, और वो आपको ना एक पर्टिकुलर गाइडेड लर्निंग होगी वहां पे, है ना। जैसे Yes, sir. आपको इंजीनियरिंग क्यों करनी होती है? आप इंजीनियरिंग, देखिए इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज है वो तो यूट्यूब पे भी है, बट हम कॉलेज क्यों आते हैं? बिकॉज प्रोफेसर हमको हेल्प करते हैं, एक पर्टिकुलर फैशन में हमको पढ़ाते हैं, एक चैनल, एक चैनलाइज इंफॉर्मेशन, एक इन कोहेरेंट इंफॉर्मेशन वो हमको शेयर करते हैं, जहां से हमारी लर्निंग फास्ट पेस होती है और बहुत अच्छी होती है, करेक्ट। तो एक आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि एक ऐसा कोर्सेज करने के बाद में आप ऐसे लोगों को अप्रोच कीजिए कि सर हमको थोड़ा हेल्प है। एट द सेम टाइम डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप किसी को हेल्प करोगे और वो बोलेगे कि सर मेरे को गाइड कर दो, और वो अपना सारा काम धाम छोड़ करके आपको गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा। बी प्रैक्टिकल, नोबडी विल डू दैट। हर किसी के पास में अपना टाइम है, अपना काम होता है, बट एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प, पार्टिसिपेट एंड गिव यू। उसके लिए द बेस्ट वे इज दैट आप अपने से सीखिए काफी कुछ, एंड उस मेंटर को अप्रोच कीजिए कि सर मैंने काफी स्टडी की है, मुझे ये सब कुछ चीजों पे प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई एम श्योर विथ योर एक्सपर्टीज इफ यू कैन हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम। उसको भी लगेगा यार कि हाँ ये बंदा मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि मैं इसको पूरा हैंड होल्ड करूं एंड 0 से 100 तक के लेके जाऊं। इसने अपनी होमवर्क की है एंड इसको बस डाउट्स क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, छोटे टाइम पे मैं इसको हेल्प कर सकता हूँ, एंड दैट इज हाउ इट विल गेट स्टार्टेड। सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई नेटवर्किंग करो जितना कर सकते हो, लिंक्डइन पे अप्रोच करो। मनीषा शर्मा मैम जी ने जैसे बताया है कि यार हमारा बहुत अच्छा अलुमनाई बेस है, उनको रीच आउट करो, एंड पीपल विल हेल्प। देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प। हम अगर मांगेंगे नहीं हेल्प तो हमको मिलेगा कहाँ से? एक बार मांग के तो देखो, हो सकता है अगर हमने मांगा नहीं तो हम वहीं पे 0 हो गए। आपने मांगा तो एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, हो सकता है कि कोई वर्कआउट कर जाए। आपने नहीं मांगा तो ऑब्वियसली आपको हेल्प नहीं मिली है ना। यस सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. Yep. Yes, Pratyush. Anything else? यार टाइम कैसे बीत जाता है नहीं चलता है, but still I'll be more than happy if I can answer. I can take any more questions if time allows, and I would also want to learn that there is particular area I can improve upon on my answering skills, so that it is much more precise and much more specific
कि हम टाइम का बेस्ट तरीके से यूज कर पा रहे हैं. Yes, sir. So yeah, thank you so much for your questions, Majid sir and Danish sir. Yes, please. हाँ 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 हाँ, गुड क्वेश्चन. हाँ, तो यार देखो, लिंक्डइन में व्हाट यू नीड टू डू इज दैट you need to follow couple of people, specific people who are part of such platform, and वो ऐसे इवेंट्स करवाते रहते हैं. ठीक है, तो लाइक मैंने बताया, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, एट द सेम टाइम इनफैक्ट आज के डेट में काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं who conduct such kind of session जहाँ पे they invite the startups, co-founders, founders, and जिनके पास में आइडिया है वो कुछ करना चाहते हैं. तो the answer is LinkedIn. LinkedIn is a blessing for you guys. वहां पे ऐसे काफी सारे लोग हैं, एंड आपको जाकर के कुछ कम्युनिटीज हैं, कुछ चैनल्स हैं, आपको वहां पे आपको ज्वाइन करने हैं, एंड आप जैसे ही उन लोगों से आप एसोसिएट होगे, आप उनको फॉलो करोगे, आपको ऑटोमेटिकली न्यूज फीड आनी चालू हो जाएगी कि ये सारे सेशन कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, देयर आर फ्यू specific media houses who are focusing a lot on the startup, like yours story, like INC42. So similarly, I would strongly advise and endorse कि ये सब टाइप के जो मीडिया हाउसेस हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, आप इनका वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट कीजिए. आप ये बनी ही आप लोगों के लिए है कि ये स्टार्टअप्स एंड ऐसे आइडियाज, ये ऐसे मेंटर्स को कनेक्ट करते हैं आप लोगों से, जो हेल्प करती हैं टू गिव यू ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि लाइक व्हाटएवर आई एम शेयरिंग ये सारी इंफॉर्मेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस आल्सो कंडक्ट सच काइंड ऑफ इवेंट्स, एंड आपको उससे, आप इनको फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे इवेंट कब कहाँ पे हो रहे हैं. और अभी तो अच्छी बात ये है कि ये सारे इवेंट पार्टिसिपेट करने के लिए फिजिकली ट्रैवल करने की भी जरूरत नहीं है. ये सारे इवेंट्स अभी वर्चुअली हो रहे हैं. तो I think it's a wonderful opportunity. Go to LinkedIn, follow your story, follow INC42 and all of such media houses. आपको ये सारे इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. Complete your question. This is a very practical question, Shashank, to be very honest. आप LinkedIn पर लोगों को रिक्वेस्ट भी भेजोगे तो हो सकता है कि 500 और 1000 में 2, 4, 5 लोग ही LinkedIn रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें आपका. काफी जो बड़े लोग होते हैं वो रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड यू विल गेट डिसअपॉइंटेड. फॉरगेट अबाउट प्रेजेंटिंग योर आइडिया टू देम एंड दे एक्चुअली फंडिंग एंड गिविंग यू मनी, बिकॉज पैसे इतनी आसानी से कोई देता नहीं है. ठीक है, what I would, and then you have a very genuine question कि how will I say कि मतलब मैं genuine बंदा हूँ and I have this potential. तो इसका आंसर मतलब कि इतना आसान नहीं है, to be very honest. तो इसके लिए कुछ लोगों के पास में एडवांटेज है, जिनके पास में इट इज काइंड ऑफ ए स्टीरियोटाइप कि अगर कोई IIT और IIM में अगर पढ़ा हुआ है, अगर उसका कुछ आइडिया है तो उसको बेनिफिट हो जाता है ना. those kind of stereotypes are there. बट आई वुड स्ट्रांगली से कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई IIT IIM से नहीं पढ़ा तो वो नहीं कर सकता है. लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी कि जो 10 बड़े स्टार्टअप हैं इंडिया के, उस 10 में से केवल एक ही स्टार्टअप है जो आज के डेट में प्रॉफिटेबल है, एंड वो स्टार्टअप बैंगलोर के एक बच्चे ने खड़ा किया जिसने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट नहीं की, एंड वही एक स्टार्टअप है जो आज के डेट में प्रॉफिटेबल है, एंड उसने 1 रुपए की भी फंडिंग नहीं उठाई. एंड ऑब्वियसली वो भी फंडिंग उठाना चाहता होगा, बट उसको फंडिंग whatever happened, but he didn't want to raise funding, उसने चालू किया, but still he was able to do that. So I will strongly advise कि अगर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको इसमें चैलेंजेस आते हैं, you should not be disappointed,
you should definitely continue in your endeavor. आपको ट्राई करते रहना चाहिए. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का वो जो मैंने वेब पेज बोला जहां आप रजिस्टर कर लो, और ऐसे सच प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप रजिस्टर कर लो. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके आइडिया को जज किया जाता है, यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन स्किल को जज किया जाता है, यहाँ पे आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस और आपका आइडिया कितना बेटर है और कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको जज किया जाता है. बाकी चीजें मैटर नहीं करती है. तो I will acknowledge, yes, your situation is genuine, ऐसा प्रॉब्लम होता है. बट देर आर लाइक, अगर प्रॉब्लम है, एडवर्सिटी है, तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं. ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जहां पे ये सब चीजों की कोई फर्क नहीं पड़ती है. आप वहां पे अपना आइडिया सबमिट करो एंड मेक योर आइडिया बेस्ट. अगर आपके आइडिया में दम है, अगर आपने बढ़िया प्लान बनाया, बी प्लान बनाया, अच्छा जीटीएम बनाया है, तो अगर कोई इसको टर्न डाउन कर रहा है तो ये उसका लॉस होगा, आपका लॉस नहीं होगा. बिलीव यू मी. Yes, please. See, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग जो इंक्यूबेशन जो रन करने वाले होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है. कुछ लोग हैं जो सिर्फ आइडियाज इनवाइट करते हैं एंड आपका जो पेपर होगा, प्रेजेंटेशन होगा, उसी पे ये डिसाइड करेंगे. कुछ लोग हैं जो आपको आइडियाज को इनवाइट करेंगे, उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन दे विल कॉल यू फॉर प्रेजेंटेशन, तब आपको प्रेजेंट करना रहेगा. कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली प्रेजेंटेशन करना होता है, बिकॉज मेनी ओकेजन आप आइडिया अपना शेयर नहीं करना चाहोगे किसी के साथ में, है ना, तो वो डायरेक्टली प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना चाहेंगे. इट विल बी डायरेक्टली अ प्रेजेंटेशन. तो ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज देयर depending upon their interest and advice and their methodology and their way of approach. तो अलग अलग है यार, मतलब कोई specific नहीं है. Whatever suits to you, please reach out to them and accordingly you take the steps. But definitely there are multiple ways. Mostly ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे वो आइडिया को they will look forward to your executive summary. आपका वो summary आपका 1 page डॉक्यूमेंट या फिर 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन, उसको देखेंगे एंड उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे मीटिंग करनी है कि नहीं करनी है. एंड दैट मीटिंग पे वो डिसाइड कर लेते हैं आपको फंड करना है कि नहीं करना है. यप, मोस्ट वेलकम. या एनी अदर क्वेश्चंस और एनीथिंग? Yeah. Any more questions? I think no more questions. So yeah, so I would like to conclude the session now. Thank you so much, sir, for such a great session. We are really grateful for your time and effort you took to share your thoughts and experience for us. We are blessed to have your valuable contribution. The session was very inspirational, thought-provoking, and was indeed helpful for our future entrepreneurs. On the behalf of Startup Club, I would like to thank you for your gracious presence and for your team members. I request Professor Alok Kumar sir for today's session coordinator to deliver his vote of thanks. Thank you, Pratyush. Alok sir. Thank you, Pratyush. Yes, sir. Thank you, Muskan, for conducting such a great session. Okay. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Our alumnus, Sri Dileshwar Deshmukh, co-founder and chief operating officer at V2 Technologies, respected dignitaries, distinguished participants, faculty members, ladies and gentlemen, a very good evening to one and all. On behalf of the organizing committee Startup Club BIT Durg, I, Alok Kumar, deem it a great honor and privilege to propose a vote of thanks. It gives me an immense pleasure to extend my gratitude to all those who have contributed in one way or the other to make this panel discussion a success. At first, I express my profound gratitude to our guest alumnus, Mr. Dileshwar Deshmukh, for kindly accepting our invitation and gracing the occasion. His presence has added grandeur to the event. We look forward to many more interactive sessions with him in future. I express my sincere gratitude to the chief patrons of this event, Sri Vijay Gupta,
Chairman, BIT Trust, and Sri IP Mishra, Secretary, BIT Trust, for their encouragement and motivation. I would like to take this opportunity to extend our most sincere thanks to the patron of this event, Dr. Arun Arora, Director, BIT Durg, Dr. Mohan Gupta, Principal, BIT Durg, and Dr. Manisha Sharma, Vice Principal, BIT Durg, for their continuous support and guidance. I express my sense of obligation to the convener, Dr. Shubhrata Nagpal ma'am, for her valuable suggestions. I am thankful to all the participants for attending the event. I am sure that the participant must have been benefited. I would like to acknowledge the unwavering support and cooperation of my colleagues and staff. I would also like to thank our student team who have been doing a lot of things to make this discussion a success. Thank you all very much indeed. Thank you. Now everyone, please stand up for national anthem. Pratyush. Okay, thank you, sir. So we will end up here and we will connect to you in the next session in future also. Thank you very much. Thank you so much. Very much, Dileshwar sir. It was a nice session. Thank Very you so nice much, session. Anush. Very informative. बहुत ही अच्छा था. तिवारी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर. Dileshwar sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, for giving this Dileshwar. opportunity. And very glad to connect with you. और जैसा कि आपने बताया कि आप स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट और उस एरिया में भी कुछ BIT के लिए करना चाहेंगे, so Yes, we ma'am. are looking forward for that also. Sure, ma'am. Tomorrow I'll connect with Alok, ma'am, and I Okay, would want to thank you, connect. thank I you want to so hire a much. few people, so I'll connect and get this started, ma'am. Okay, so I request everyone to Alok sir, switch on their mic. congratulations to you and our team. Shashank, Yes, Samarjit, Rohan, and Thank you, ma'am. Pratyush, and Pratyush. all faculty members. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I must say that it was a very, very focused. It was very focused and very, very good session. Continue to have such sessions. I think the continuity is very, very important. Every time you will interact, you will learn something new, and few more information will, you will be able to get few more knowledge, and जो आप अपने life में use कर पाओगे. So please be part of such sessions and continue कीजिए ये session. That will be much more important. So wonderful, great job, guys. Continue to do that. Have a great time. Yes, sir. Okay.